नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 के तहत थिंक 20 कार्यक्रम की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि केवल मीटिंग में मत रहना, घूमना फिरना भी। भोपाल और आसपास ट्राइबल म्यूजियम, सांची, भीमबेटका घूमे। समय हो तो उज्जैन में महाकाल लोक ओमकारेश्वर भी जाए। मध्य प्रदेश में 11 टाइगर सेंचुरी हैं। मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ देखकर जाइए। सीएम ने भारतीय विचार वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा, यही विचार दुनिया को शांति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव भारत की परंपरा है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम चिंतन मनन करेंगे, इससे जो अमृत निकलेगा वो दुनिया के काम आएगा। इस बार G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। दुनिया में हमने एक नहीं 2 विश्व युद्ध देखे, आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी शांति नहीं है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। The infinite cosmos of Bharatiya Sanskriti is filled with shining stars and constellations, the brightest of which appeared centuries ago in the small village of Kaladi in Kerala. Shankar, a child who set off on a journey to Omkareshwar, treading 2,000 miles of wilderness and extremities to meet his guru, Govind Bhagwat Pad, at the age of just 8. Initiated by his guru Shankar, now known as Shankar Bhagwat Pad, embarked on a Digvijay Yatra, a grand tour of the land of Bharat. He went on to establish the 4 great mutts in all the 4 corners of Bharat and revived ancient temples along his way. The worship of Panchadevta and the Dashnami sannyasi tradition was initiated by Shankar, breathing a new life into the withering Sanatan Dharma Parampara. Shankar Bhagwat Pad was the most exceptional cultural unifier and exponent of Advaita Vedanta that Bharat has ever seen. He united with wars, conflicts, and merciless exploitation of Mother Nature. Under the physical manifestations of these problems lies the fundamental ignorance of duality. Dispelling these differences with the light of Advaita Vedanta will usher the world into an era of peace and bliss. मैं आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओमकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। Acharya Shankar's Gyan Bhumi calls upon us. The message of oneness calls upon us. Welcome to Ekatma Dham, a global center for oneness. धाम का प्रकल्प State-of-the-art Shankar Museum, named Advait Lok, an international Advaita Vedanta Institute, will be established under the guidance of the Sant Samaj of India. In the coming years, modern laser, light, water, and sound shows focused on the knowledge of Upanishads will become the center of attraction for thousands of devotees visiting every day. Advait One
spread over 36 hectares, will preserve the natural greenery of Omkareshwar. On the other bank of Narmada, 4 important education centers, Gurukul, Library and Sharda Mandir, will be built under the International Advait Vedant Institute. The delegates are requested to use the translator device if needed to translate Hindi to English on channel 1. आदरणीय सुमन बैरी जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर स्लामेड सोडर सोनो जी, हमारे रक्षा मामलों के उपमंत्री इंडोनेशिया श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री तेजतुसी सोनबे जी, सुजन चिनाय जी, राजीव कुमार जी, डेनिस नोवर जी, सुश्री श्यामला गोपीनाथ जी, एम सुरेश बाबू जी, जॉर्ज लोरथे जी, सचिन जी, जिन्होंने T20 की इस बैठक को यहाँ आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के हृदय प्रदेश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में, मतलब देश के दिल में, दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। सचमुच में ये की है, और वो सबको, सारे देशों को सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि हम इस दिशा में कैसे जाएं। और छोटे छोटे कामों के द्वारा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है। आप जानते हैं, उनने दुनिया को लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ, और लाइफ का अगर मतलब आप लाइफ और पंचामृत में भी उन्होंने कहा भारत 2030 तक अपनी गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा करेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये भारत कह रहा है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। चौथा, उन्होंने कहा 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा कम करेगा। और पांचवा, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। उनकी था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस लें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स सारी सोच और मानसिकता को बदल देते हैं। और एक हर काम करो तो जन भागीदारी के साथ करो। जनता को स्वच्छता की बात हो रही है। इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है 6वीं बार, जो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है। भोपाल देश की राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन ये भी हमने बनाई तो जनता के साथ मिलके हम गांव का गौरव दिवस मनाते हैं, शहर का गौरव दिवस मनाते हैं। और उस दिन उस गांव और शहर के लोग जहां भी रहते हैं, अपने गांव में आके चाहे स्वच्छता हो, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, आंगनबाड़ी अडॉप्ट करो, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो पब्लिक, देखिए, जनता को साथ लिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसे कई इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश में लिए हैं। मैं स्वयं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं, और इसलिए अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो G20 के सूत्र वाक्य के रूप में वन अर्थ, मतलब ये पृथ्वी एक है हम सब के लिए, ये पृथ्वी हम सब के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसका साझेदारी के साथ संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। पेड़ लगा दो, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और कहा कि पेड़ लगाओ और उस पोर्टल पर अपलोड करो। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 साल से भी कम हुआ है अंकुर पोर्टल लॉन्च किए हुए। लगभग 8 महीने में 37 लाख लोगों ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए और पोर्टल पर फोटो अपलोड किए। और केवल लगाने के अपलोड नहीं किए, 30 दिन बाद फिर फोटो अपलोड किया कि हमारा पेड़ ऐसा है, और 70 दिन बाद फिर अपलोड किया कि अब हमारा पेड़ ऐसा है। तो धीरे धीरे प्लांटेशन का एक वातावरण बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम केवल बात ना करें, हम अपने जीवन में उसको उतार के
कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। 5 चीजें में, एक पेड़ लगाना, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाने की बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में हमने चलाया जलाभिषेक अभियान और उसमें हमने तय किया गांव का पानी गांव में रोकेंगे, खेत का पानी खेत में रोकेंगे। जनता के सहयोग से, केवल सरकार ने नहीं, जनता ने वाटर बॉडीज बनाना शुरू की सरकार के साथ मिलके, और हमने लगभग 4.5 लाख वाटर बॉडीज बना के कंप्लीट कर दी। छोटी बड़ी वाटर बॉडीज वाटर रिचार्जिंग का काम करने का काम कर रही है। और हर साल गर्मियों में हमारा जलाभिषेक अभियान चलता है, जहां जनता के साथ मिलके हम पानी बचाते हैं। मध्य प्रदेश में अब कैनाल इरिगेशन पे हम नहीं जा रहे, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रेशराइज पाइप की प्रणाली को अपना के हम पानी कैसे बचाएं। नहीं तो वाटर लेवल की जगह इतना नीचे चला जाता है कि वो एक अलग समस्या बन जाती है। बिजली बचाएं। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए बिजली बनाना बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। यह हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5,500 मेगावाट सोलर की एनर्जी हमने उत्पादित की है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो अपने बांधों में भी पानी पर सोलर पैनल बिछा के सोलर पावर प्लांट लगा रहा है और बिजली का उत्पादन करने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक बिजली बचाएं। मैं खुद अगर अपने कमरे से बाहर निकलता हूं तो स्विच ऑफ खुद करता हूं। मैं वेट नहीं करता कि मेरे जाने के बाद कोई स्विच ऑफ करे। हमने ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते क्या? और पूरे मध्य प्रदेश को मैंने आह्वान किया है कि फालतू बिजली नहीं जलेगी, बिजली बचाने का काम करो। एक और महत्वपूर्ण अभियान, वो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन वो है बेटी बचाओ अभियान। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज्यादा उपयोगी बेटा आए। हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा हो जाएंगे, और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4,000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। हमने एक योजना बनाई, मैं उसका इम्पैक्ट बता रहा हूं आपको कि मध्य प्रदेश में 2011-12 में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस लें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर, अद्भुत नेता है। G20 की थीम जो इस बार है, वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। देखो, दुनिया में हमने एक नहीं 2 विश्व युद्ध देखे, आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी युद्धों का अंत नहीं है। शांति होगी कैसे? भारत का एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज का नहीं है, हजारों साल पहले का भारत का विचार है। भारत ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो सारी दुनिया को ही एक परिवार मानते हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। ये विचार दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, और शायद प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वन अर्थ वन फैमिली ये कॉन्सेप्ट दिया है। अभी जब आपने एकात्म धाम का यह प्रेजेंटेशन अभी देखा, देखिए दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, भेदभाव,
अब ये धरती तो वास्तव में सबके लिए बनाई, कोई भगवान को माने ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन धरती तो सबके लिए है। इस धरती पर अलग अलग चैम्बर तो हमने बना लिए, ये मेरा देश है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरी दुनिया है, लेकिन यह ये सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और ज्यादा गहराई में जाकर आप सोचें तो भारत ने ये बात हजारों साल पहले कही कि हम सब अलग नहीं, सिया राम में सब जग जानी। कई लोग ये कहते हैं कि सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं, एक ही चेतना मनुष्य मात्र में है। और केवल मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं रही, ये चेतना और आगे बढ़ी तो भारत ने तो ये भी कहा कि प्राणियों में वही चेतना है, और इसलिए हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं। कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन गाय माता है, गाय की पूजा करो। देवताओं के जो अवतार हुए उनमें से प्राणियों के रूप में भी हुए, वो यही भाव है कि एक चेतना, वही चेतना प्राणियों में भी है, और वही चेतना हमने मानी पेड़ पौधों में भी। इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा करते हैं हम। हिमालय हमारे लिए देवतात्मा है। यह एक पर्व होता है गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने कई वर्षों पहले कहा कि और किसी भगवान को काय को पूछते हो, ये पर्वत है, ये जहां में पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, तो प्रकृति की पूजा करो। नदियों में, समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सूरज में, चंद्रमा में एक ही चेतना। और ये विचार अगर व्यवहारिक रूप से, और इसलिए देखो भारत ने ये कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। भारत में बच्चे ये कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया का कल्याण हो। ये बच्चा गाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सचमुच में ये अद्वैत का भाव सारी दुनिया से मतभेदों को मिटा सकता है और दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। मैं सारे थिंकर से आए, मैं विचार, और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहाँ पधारे हैं। अभी जब तेज तुलसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और मैं सचिन जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोई कमी हमारे अतिथियों के स्वागत में रहना नहीं चाहिए। आप कर भी रहे हैं। मित्रों, हम सब T20, और मुझे सचमुच में आज लग रहा है जैसे भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई हो। इतने लोग पधारे हैं। आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा जो पूरे देश की जनता के लिए जाएगा सकता है। मैं सारे थिंकर से आए, मैं विचारक नहीं हूं, मैं किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं T20 के सभी थिंक टैंक्स जो है बैठे, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जरा इस दिशा में सोचें। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हम में सब शामिल है, कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में
प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया और जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का हम सामना कर रहे हैं। ये पंचामृत सचमुच में दुनिया को बचाने का मंत्र है और आज बेहद प्रासंगिक मैं इसको मानता हूं। अब ये सदी हमको धरती को समर्पित करना चाहिए। एक ग्रीन जीडीपी के बारे में आप लोग विचार करें। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ। प्रकृति से उतना निकालो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले। इसलिए प्रगति प्रकृति के साथ। ग्रीन फाइनेंसिंग, पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रभावी उपयोग करें और उसके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था में सभी देशों की भागीदारी हो। ग्रीन एनर्जी के बारे में ट्रैक 3 में आप इस पर मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। अब प्रधानमंत्री के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश छोटी छोटी चीजों से कैसे पर्यावरण को बचाने में, धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहा है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आज आप मैं आभारी हूं, सचिन जी आपने आमंत्रित किया और आप सब मेरे साथ पेड़ लगाने आए। पर्यावरण अगर बचाना है तो यह भाषण से नहीं होगा, स्पीच से नहीं होगा, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रोज अपने दिन की शुरुआत पेड़ लगा के करूंगा, प्लांटेशन से करूंगा और लगातार मैं पेड़ लगाता हूं और मैं अकेला नहीं लगाता, मेरे साथ अलग अलग संस्थाएं पेड़ लगाती है। फिर मध्य प्रदेश को हमने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर एक पेड़ लगाओ। मैरिज एनिवर्सरी पर जो शादी की वर्षगांठ है उस दिन एक पेड़ लगा दो। इससे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी और क्या हो सकती है। बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया। मदद करो, कमजोर को भी आगे लाने की कोशिश करो। और इसलिए कई बार जब G20 की बात आती है तो मेरा दिल कहता है केवल G20 क्यों, दुनिया, सारी दुनिया क्यों नहीं, सारी दुनिया के देश इसमें क्यों नहीं। G7, G20 ये भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हमने। G7, G20 नहीं, सारी दुनिया एक हो जाए और कोई एक फोरम बने जहां दुनिया के सारे देश साथ आ जाए और साझा विचार करें कि कैसे सबका कल्याण हो। ये T20 की बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ केवल मीटिंग में मत रहना, आप थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी, मध्य प्रदेश देखना भी। या ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा है हमारा, तो ट्राइबल म्यूजियम देखने आइए। वर्ल्ड हेरिटेज में सांची बिल्कुल पास में है, सांची देखने जाइए। और मैं तो ये कहूँगा समय मिला तो भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहिए। 3500 साल पुरानी गुफाओं में चित्र उकेरे हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है अलग अलग उस समय की मानव सभ्यता। वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो समय हो तो महाकाल महालोक भी आप देख सकते हैं। उज्जैन जाके एकात्म धाम जहाँ ओमकारेश्वर में बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 11 टाइगर पार्क यहाँ पे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि अगर समय हो तो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी देखिए। और टाइगर भी रिजर्व हमारे ऐसे हैं कि भोपाल में भी कई बार टाइगर गरजते हैं और कई बार उनसे हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि मध्य प्रदेश की विशेषताएं भी देख के जाइए। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चिंतन से जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो विश्व का कल्याण करेगा। एक बार फिर आपका स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। G20 की थीम वसुधैव। कार्यक्रम में 22 देशों से आए 94 मेहमानों समेत करीब 300 सदस्यों ने हिस्सा लिया और कई सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, Ambassador Sujan Chinoy, the chair of the T20
and Director General of the Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis, Professor Sachin Chaturvedi, Director General of the Research and Information Systems, and also a key nodal point of the Think 20 India process, Ambassador of Netherlands, other ambassadors, members of the diplomatic corps, distinguished participants, friends, Namaskar. Let me begin by felicitating the Research and Information Systems in general and Professor Sachin Chaturvedi in particular for the timely initiative of hosting this important part of the Think 20 process. I'm also very happy that the RIS has chosen this clean, green, scenic and designated smart city of Bhopal to host this important G20 event. One of our broad priorities under our G20 presidency is accelerated, sustainable and inclusive growth. And in many senses, the state of Madhya Pradesh exemplifies this. Between 2015 and 2021, the state achieved a record 13% growth. And today, we are looking at over 10%, a phenomenal over 10% growth when we see all over, in many senses, recession and lowering rates of growth in the world. This, of course, conference is very important from the point of view of India's G20 presidency. After all, Think 20 is the brain trust that enables the G20 to meet its goals. Namaskar. Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Suman Beri, Vice Chairperson, Niti Aayog, Shri Harsh Shringla, Chief Coordinator of G20 India, my colleague Dr. Sachin Chaturvedi, Mr. Sonobe, other distinguished guests on the dais, distinguished participants, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. As the Think 20 Chair for India, it gives me great pleasure to be here in Bhopal, which by now you would have seen is one of India's cleanest and greenest cities that seems to have already implemented in fulsome measure Prime Minister Narendra Modi's vision for lifestyle for environment. Congratulations. Your presence here, ladies and gentlemen, from different parts of the world, is a testimonial to the fact that India's G20 presidency sincerely aims to transcend all geographical barriers and limitations. In accordance with Prime Minister Modi's vision, we have given voice to the global south and also ensured gender equality. We have connected with experts around the world and across India. This approach is underscored by the overarching theme, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. We are meeting in an era of polycrises. All aspects of globalization are under stress, whether trade, technology, finance, movement of human resources, energy or food. This is yet another moment for the G20 to reinvent itself, as it has done on numerous occasions facing challenges in the past. The G20 is a large and fairly representative grouping. It should not and cannot confront the existing multilateral system, nor must the G20 become the echo chamber for the existing infirmities in multilateralism. During India's presidency, it has a genuine chance to point towards a new direction driven by values, ethics and a new जहाँ की संस्थागत या राष्ट्रगत प्रतिनिधि हों, आज यहाँ पर हमारे आईटेक के अफ्रीका के जो 28 लोग हैं, उनका भी मैं आईटेक के सारे अपने पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जिस लाइफ के प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, उसमें 5 बातें प्रमुख हैं। सबसे पहला, जब हम लाइफ कहते हैं तो उसमें सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये एक महत्वपूर्ण है। जो टिकाऊ कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो, उसी से जो हमारे बिहेवियर में, इंडिविजुअल बिहेवियर में, संस्थागत बिहेवियर में जो परिवर्तन आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। जैसा शिव शेखर शुक्ला जी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं एक दार्शनिक के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जो एकात्म धाम की बात आपने फिल्म में देखी, उसी के चलते इस कार्यक्रम को पहली बार
T20 में आज तक कभी भी फिलोसोफर्स को नहीं जोड़ा गया। हमने यहाँ पहली बार ऐसा प्रयास किया है। डोरिस हैं, थॉमस पॉगी हैं, जेफरी सैक्स हैं, ये लोग सभी डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात करेंगे और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एथिक्स का है। एथिक्स फाइनेंस में हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एथिक्स को फॉलो करें, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एथिक्स को लेकर के आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लेकर के आएँ। जो ग्लोबल वैल्यू सिस्टम है उसके जो नॉर्म्स हैं उसको हम बदलने का प्रयास करें। क्या हम जीडीपी से आगे जा सकते हैं, वेल बीइंग इंडेक्स लेके आ सकते हैं? क्या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की नई अप्रोच जो 4 सेक्टर मॉडल के रूप में निकलेगी? हीरद यहाँ पर आए हुए हैं वॉशिंगटन से, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे। IFIs, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, इसके बारे में चर्चा होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हमने 5 गोल लिए हैं, उसमें वीमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन है। गोल 11 में अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, उसको समाज के साथ जोड़ना, समाज की जिम्मेदारी, और मध्य प्रदेश स्वयं इस संबंध में एक आदर्श उदाहरण है जब प्रदेश के सारे नागरिकों को अपने अपने नगर पे गौरव। इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन है। गोल 11 में अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, उसको समाज के साथ जोड़ना, समाज की जिम्मेदारी, और मध्य प्रदेश स्वयं इस संबंध में एक आदर्श उदाहरण है जब प्रदेश के सारे नागरिकों को अपने अपने नगर पे गौरव करने का एक अनूठा प्रयास मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा है। गोल 3 में हम वन हेल्थ की बात करेंगे। गोल 7 में ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की बात होगी। गोल 17 में जहां हमने GIZ के साथ पार्टनरशिप करी है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात होगी। जो LDC का ग्रेजुएशन है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये कंट्रीज जो अभी तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, उनका ग्रेजुएशन 2026 तक होना है। तो ये जो ग्रेजुएशन LDCs का होना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये भी अगर G20 चिंता करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इस सम्मेलन के आखिरी में हम भोपाल डिक्लेरेशन निकालेंगे, उसमें इनमें से कई मुद्दों की चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon